السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 121 ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، اور میں نے آپ سے یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ بڑی اہم حدیث ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بنیادی پالیسی میں سے دو پالیسی ذکر کیا ہے. تو ایک بات تو یہ بتائی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعظم الجزائی ما عظم البلائی، کہ بڑا بدلہ کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس پر ہم نے بات کیا جو اللہ نے ہم کو توفیق دی. جو دوسرا جملہ اس سے فرمایا گیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ابتلاہم، تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. کل ہم نے آپ کو جو چار باتیں بتائی تھی وہ بتا کر آگے بات کرتے ہیں. بات یہ بتائی تھی کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی 4 وجہ بنیادی طور پر ہوتی ہیں. ایک بطور سزا ہوتی ہے، ایک بطور آزمائش ہوتی ہے، ایک یہ کہ اس مصیبت کا سبب ہم خود ہوتے ہیں. کوئی ایسا کام ہی کیا ہے، زہر کا پیالہ پیا گیا ہے، نتیجہ خود ہم نے برآمد کیا ہے. اور چوتھی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے، لہذا ہم کو بھی برائی مل گئی بدلے کے طور پر. اگر یہ مان لیا جائے، کل میں نے یہ بات بھی بتائی تھی آپ کو کہ اس میں کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش سے اپنی محبت کو جوڑا کیوں ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو ضرور آزماتا ہوں. اس کی وجہ آپ کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ایک ایک پوائنٹ سنتے جائیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بطور آزمائش ہے تو پہلی وجہ یہ ہے، قرآن مجید نے سورہ عنکبوت پہ یہ بات کہی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لائیں گے اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، ضرور آزمائیں گے. تاکہ یہ ڈسٹنگوش ہو، کیا تاکہ یہ فرق معلوم ہو کہ اس میں اوریجنل مجنو کہاں ہے. انگلی کٹا کر کے شہید ہونے والے لوگ ہیں یا حقیقت میں ان کو اسلام سے دلچسپی ہے. کیونکہ اگر دلچسپی ہوگی تو وہ ہر مصیبت کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کیا کرے گا؟ برداشت کرے گا. اور اگر محض مثال کے طور پر ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ اگر اس کی کوئی لالچ ہوگی تو جیسے ہی مصیبت آئے گی کھٹ سے ریورس گیئر لگا کے چلا جائے گا کہ بابو یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر اس کو ایمان سے حقیقت میں محبت ہوگی تو وہ ساری مصیبتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا. آپ کے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کی مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ بات دل میں نہیں لا رہے ہیں کہ یہ مصیبت اس وجہ سے آ رہی ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آئی ہے مصیبت ایمان کی وجہ سے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہ قبول کرتے، کوئی پرابلم نہیں تھی. عمار بن یاسر کا خاندان اسلام نہ قبول کرتا، کوئی پرابلم نہیں تھی. مصعب بن عمیر اسلام نہیں قبول کرتے، کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن ہم جس کو پرابلم کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی اس کو ایمان لانے کی وجہ سے پرابلم مانا نہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو پتہ چلا کہ یہ اوریجنل اللہ کے چاہنے والے لوگ ہیں. اب جتنا آپ مصیبت پر اللہ پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اتنا آپ حقیقت میں آپ کا ایمان تگڑا ہے. دیکھیں ایمان عبادتوں سے نہیں آزمایا جاتا، اس کو بھی نوٹ کرنا. عبادتیں ایک سہل چیز ہے. قربانی دینی جب پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس
डिग्री पर खड़ा है जा करके। और ये जो हमारी ज़ाहिरी इबादतें होती हैं तो बहुत आसान सा काम होता है, नमाज पढ़ लेना है, रोज़ा रख लेना है, हज कर लेना है, ज़कात दे देना है। कुरान मजीद कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी तो तुम छू नहीं सकते, हरगिज हरगिज नेकी नहीं मिल सकती क़यामत में जब तक कि तुम खूब कुर्बानी न दे लो। जो चीज़ पसंद है वो जब बंदा अल्लाह के रास्ते में करता है तब परवरदिगार आलम उसका बदला इनायत फरमाता है। हमको अपनी जिंदगी का तज्जिया करना चाहिए कि हमने ये नेकी क्यों की है। हमने एक जोड़ा कपड़ा एक गरीब को दिया क्यों है? वाकई में हमको इस कपड़े से बड़ी मोहब्बत है और हमने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके गरीब को दिया है, या ये कपड़ा अब मेरे लायक पहनने के नहीं रह गया है? दोनों आपको सोचना है। अब सब जानते हैं, हम इस पर लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहते हैं। एक मरतबा देखें, हमने किसी को एक टोपी भी इस वजह से दी है कि ये टोपी हमको ज्यादा पसंद है, लिहाजा ये टोपी दे देनी चाहिए। हमने उस टोपी को दिया है जो हमको किसी भी तरीके से पसंद नहीं है, लिहाजा ये देखने में तो ठीक है हमने नेक काम किया है, लेकिन क्योंकि उसकी वजह क्या होती है, लेता कौन है? आप समझ रहे हैं कि वो गरीब तो हमारे निगाह में उसकी वैल्यू कम है ना। गरीब तो लेता ही नहीं है, यही तो समझ में नहीं आती बात लोगों के। लेता है रब्बे दुल जलाल। अब रब एक किसी भी अपने से बड़े आदमी को आप गिफ्ट देना चाहेंगे तो आप क्या सोचते हैं, ईमानदारी से बताओ? अच्छा से अच्छा, है ना। और जो सबसे बड़ा है अगर उसको दिया जा रहा है तो कैसा होना चाहिए, खुद इसका अंदाजा कर ले। तो ये ना समझें कि मैंने किसी मिस्कीन गरीब को दिया है, दिया ही नहीं आपने किसी को, आपने दिया है रब्बे दुल। वो खुद कहता है परवरदिगार आलम, हदीस कुदसी है कि क़यामत में अल्लाह ताला एक आदमी से कहेगा कि मेरे पास कपड़े नहीं थे, आपने मुझे कपड़ा नहीं दिया। वो बोलेगा अल्लाह आप तो अल्लाह हैं, आप तो दुनिया को कपड़ा पहनाते हैं, आपको कपड़े की क्या जरूरत है? का एक गरीब तुम्हारे पास आया था, उसने बताया था अगर तुम उसको कपड़ा देते तो हमको देते। उसको अपने बंदों से इतना प्यार है कि इस इंसानी सेवा को, इंसानी खिदमत को परवरदिगार आलम कहता है कि आपने मेरी खिदमत किया है। ये समझकर जब मामला करेंगे तो आजमाया जाएगा ईमान। कभी भी ईमान वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, मैं ईमान ले आया हूं या मुसलमान हूं। मुसलमान होने का मतलब ही ये है कि प्रॉब्लम्स से गुजरना है। हदीस में क्या आता है, अब दुनिया सही, एकदम सही हदीस है, अब दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मुसलमान के लिए जेल है। जेल में क्या होता है? जेल में आपकी एक मर्जी नहीं चलती है। नहीं साहब मुझे 5 बजे चाय पीने की आदत है, यहां चाय दी ही नहीं जाती है। मैं हर दूसरे दिन गोश्त खाता हूं, ये साहब पूरा सारा का सारा साल भर सब्जी दी जाएगी। आपकी कोई भी मर्जी नहीं चलती है। इसलिए हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए जेल है। तुम यहां अपनी मर्जी चलाना चाहते हो तो वहां मर्जी नहीं चलेगी, और अगर वहां अपनी मर्जी चलाना चाहते हो तो यहां नहीं चलेगी। कुरान ने क्या कहा, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कि वहां तुमको वो मिलेगा जो तुम्हारी मर्जी। क्यों? क्योंकि तुमने यहां अपनी मर्जी कुर्बान किया, लिहाजा अब तुम्हारी मर्जी को कर दिया गया। ये टिट फॉर टैट है, जैसा करोगे वैसा होगा। अपनी मर्जी यहां चलाओगे वहां नहीं चलनी है। यहां अपनी मर्जी कुर्बान कर दिया बंदा ने अल्लाह के लिए, उसके रसूल को खुश करने के लिए, गोया कि आपकी अब मर्जी चलेगी। तो पहली वजह क्या है कि ईमान वालों को ये समझ लेना चाहिए कि ये फूलों का रास्ता नहीं है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये मुसलमान होना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपने जो टारगेट माना है, आपने जो अपना एम और मकसद रखा है वो जन्नत है। कल भी बात की थी, जन्नत जिसका भी मकसद होगा प्रॉब्लम से घिरी हुई जन्नत है। हदीस में आता जितनी चीजें आपको पसंद है इस दुनिया में, जितनी चीजें पसंद हैं
وہ सब जहन्नम की बाउंड्री है। जितनी चीजें पसंद हैं उसको जहन्नम की बाउंड्री है वो, और जितनी चीजें नापसंद हैं वो सब जन्नत के रास्ते हैं। फजर में आना नापसंद है ना, नापसंद है, तभी तो 90% नहीं आते लोग। तो ये जो आपको नापसंद है वही रास्ता जन्नत का है, वही जाता है, वही जन्नत जाता है रास्ता जो नापसंद है। ऐसे एक सबको आप मिसाल ले लें, एक आपको मिसाल दे जाए जो बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है बात। ये तो अल्लाह ताला का फजल है वाकई में कि जो इतना बड़ा कादिर मुतलक है, जो सब कुछ करता है, रोज आना एक आदमी उसके खिलाफ काम करे और फिर भी छोड़ता रहता है, उसका फजल नहीं है भाई। जिसकी ताकत का अंदाजा नहीं किया जा सकता है, वो रोज डेली एक आदमी पिछले 50 साल से डेली सुबह करता है, फजर की नमाज भी पढ़ता है डेली, 50 साल हो गए। परवरदिगार आलम ने छोड़ा है, उसका एहसान नहीं है। बस होता क्या है कि जब पकड़ लेता है तो बड़ा टाइट पकड़ता है। कहता है वह उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, मैं ढील खूब देता हूं लेकिन जब पकड़ता हूं तो बहुत टाइट पकड़ता हूं। तब बंदा चिल्लाना शुरू करता है, हालांकि पहले दिन 50 साल उसको भूल गया है, वो समझे आज पकड़ लिया गया, नहीं, 50 साल से आपको इग्नोर किया गया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक चोर पकड़ा गया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे बताया, उसने कहा कि हजरत पहली मर्तबा गलती हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि पहली मर्तबा में अल्लाह ताला पकड़वाता ही नहीं है। कहा इनकी फाइल चेक करो, इनका केस देखो, ये पहली मर्तबा अल्लाह नहीं, अल्लाह तो बड़ा रहमान है, रहीम है, बड़ा छोड़ा है उसके बाद पकड़वाया है। वो छोड़ने वाला पीरियड आपको याद नहीं है, पकड़ने वाला दिन आपने पकड़ लिया है। लिहाजा पहली वजह क्या है कि अल्लाह मोहब्बत करता है अगर तो जरूर आजमाएगा। लेकिन मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं, ये मैंने शुरू में जो बात कही कि अगर आजमाइश मानते हैं तब ये वजह है, वरना वो 3 वजह है तो खतरनाक वजह है, सजा के तौर पर है तो खतरनाक है। तो ये भी नहीं समझना चाहिए किसी कौम को या किसी फर्द को कि हम प्रॉब्लम में हैं लिहाजा अल्लाह हमसे बड़ी मोहब्बत कर रहा है, ये मतलब भी नहीं है। अगर मोहब्बत कर रहा है तो ये वजह है कि वो आपको आजमा रहा है, पहली वजह ये। दूसरी वजह गौर से सुनिएगा, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ अल्लाह ताला आखिरत में अच्छा मामला करना चाहता है, दुनिया में उसको सजा बहुत जल्द देता है। ये समझे बात, आखिरत में मामला आपके साथ अच्छा करना चाहता है, दुनिया में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सजा जल्द। सही एकदम हदीस है, पेश को कोई हदीस इस पे आप उंगली नहीं रख सकते, सब सही हदीस है। दुनिया में उसके लिए अल्लाह ताला अजाब जल्दी करता है, क्यों? ताकि ये वहां बच जाए। अच्छा, वहां अगर पकड़ा गया तो हजारों साल का मामला है, यहां प्रॉब्लम आई तो ज्यादा ज्यादा 25 साल से शुरू कर ले तो 75 साल, ज्यादा ज्यादा 50 साल का मामला है। तो 50 साल किसी को मुसीबत में लगातार मुब्तला कर दे, ये ज्यादा बेहतर है या अनलिमिटेड टाइम के लिए मुसीबत में डाल दे? आप खुद हिसाब करके बता दीजिए। तो खैर ही तो किया कि उसने 50 साल मुसीबत में डाल करके फॉर एवर, हमेशा हमेश के लिए उसने क्या कर दिया, मामले को अच्छा कर दिया। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और उसके आगे ये भी कहा गया है कि जिसके साथ खैर का मामला नहीं करना चाहता है उसके अजाब को दुनिया में खूब डिले करता है और आखिरत में पकड़ता है। तो पता चला कि आखिरत से बचाने के लिए दूसरी वजह है कि आखिरत से बचाने के लिए परवरदिगार आलम इस दुनिया में क्या करता है। तो मोहब्बत हुई कि नहीं हुई? कोई वालिदैन बच्चे को जब मारते हैं, आप बताए दुश्मनी में मारते हैं या मोहब्बत में? हमेशा प्यार में मारते हैं। उस वक्त प्यार आपको नजर आए या नजर आए, लेकिन उसके पीछे राज क्या है कि वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मारते हैं। आप बाजू वाले बच्चे को अपने बच्चे के मुकाबले में कम चाहते हैं या ज्यादा चाहते हैं? या तो चाहते ही नहीं है?
وہ कितनी भी गलती करता है आप उसको कभी नहीं मारते, क्योंकि आप उसको चाहते ही नहीं है। आप जिसको चाहते हैं उसको डांटते और उसको मारते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको कुछ भी नहीं बोलते। अब आपका बच्चा देखा कि मैं गलती कर रहा, दोनों बच्चे एक ही गलती कर रहे थे दरवाजे पर, आपने अपने बच्चे को मारा, वो बच्चा अभी ना समझ है, उसके दिमाग में यही बात आती है कि अब्बा ने मुझे मारा है, अब्बा मेरे दुश्मन हैं, बाजू वाले को नहीं मारा है, लिहाजा बाजू वाले बच्चे को हमसे ज्यादा चाहते हैं। ये बच्चा हिमाकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये हिमाकत कर रहा है। बात में समझा पा रहा हूं अपनी? हम मोहब्बत में ही मारते हैं, प्यार में ही मारते हैं, दुश्मनी में कभी नहीं मारते हैं। जिससे दुश्मनी है उसको तो हमने मारा ही नहीं उस बच्चे को। लिहाजा ये जो हदीस में आ रहा है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं मैं उसको बहुत जल्द सजा देता हूं, ताकि ये आखिरत की अनलिमिटेड सजा से क्या हो जाए, बंदा बच जाए। तीसरी चीज हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रवायत है कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिबहु मिनहु, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का मामला करता है उसको आजमाता है, उसको मुसीबत डालता है। ये सब तजाद चीजें हैं, लेकिन जब आप कभी भी अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के मामले को पेरेंट से कंपेयर करें, कब बात एकदम समझ में आ जाएगी। वालिदैन से मुआवजा करें, सारा मसला एकदम क्लियर होता चला जाएगा। और वालिदैन ही से क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा वालिदैन की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत को वालिदैन की मोहब्बत से क्या किया है, मुआवजा किया है। अगर आप उनकी मोहब्बत जब भी देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आती रहेंगी कि मामला क्या है। तो ये बुखारी की रवायत है कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का मामला करता है, युसिबहु मिनहु, वो उसमें जरूर उसको क्या करता है, आजमाता है। चौथी वजह, एक आदमी मुसीबत आई, उसने उससे सब्र किया। एक आदमी को नेमत मिली, उसने शुक्र किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन की अजीब शान है, मुसीबत पे सब्र करता है तो भी अजर मिलता है, और इनाम पे शुक्र करता है तो भी इसको सवाब मिलता है। तो इसका कोई लम्हा घाटे का है ही नहीं, मोमिन का कोई लम्हा घाटे का ही नहीं। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि मोमिन का कोई लम्हा, कोई मिनट भी घाटे का नहीं है। मुसीबत पर सब्र करके सवाब ले लेता है और नेमत पे शुक्र करके सवाब कर लेता है। 24 घंटे उसकी नेमत ही नेमत है। लिहाजा अगर मुसीबत आ गई और बंदे ने सब्र, लेकिन ये बात याद रखें, इन तमाम में जो नोट है कि उस मुसीबत पर साबिर होना चाहिए, ये नोट कर लें। साबिर कल बताया था इसके बारे में कि एक नेचुरल तकलीफ का जिक्र होना है, वो बहस नहीं है। अब मैंने बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सांप छोड़ दिया गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे डर गए। ये जो डरना है, ये डरना फिक्री है। मुसीबत पर बंदे के मुंह से आह निकल जाना, बंदे को तकलीफ होना, बंदे को रोना, ये सब उसके बस में नहीं है। ये एक नेचुरल चीज है। लेकिन मुसीबत आने पर अपने नजरियात बयान करना, जिसको हम कारण कहते हैं, कारण बयान करना, अल्लाह मैं ही मिला था, पूरी दुनिया में मेरा तो एक ही लड़का था, है? अच्छा ये बताओ, जिसके साथ भी करेगा, जवाब दे रहा हूं, तो वो जुमला बोलेगा मैं ही मिला था, करे किसके साथ? समझे मेरी बात? जिसको भी मुसीबत में मुब्तला करेगा, अगर वो ये कहता है कि अल्लाह मैं ही मिला था, तो जिसके साथ भी करेगा वो बोलेगा मैं ही मिला था। एक आदमी की आंख ले लेता है अल्लाह ताला, रोशनी दे लेता है, वो कहता है अल्लाह मैं ही मिला था, मुझे रोशनी नहीं मिली। अच्छा चलो दूसरे के ले लेता तो वही जुमला बोलता कि नहीं बोलता? तो हर आदमी जब वो जुमला बोलेगा तो लॉजिक में ये पहला लेसन पढ़ाया जाता है कि जिस सवाल के जवाब में सवाल दर सवाल उठे वो पहला सवाल गलत होता है, लिहाजा ये सवाल ही गलत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन तो खैर ही खैर का मामला है। जब भी उसको मुसीबत आती है सब्र करके सवाब ले लेता है, जब नेमत मिलती है तो शुक्र करके सवाब ले लेता है। अभी इसमें 2-3 बातें और हैं, इंशाल्लाह जिंदगी में तो कल बात करेंगे। और इसमें एक टॉपिक और हम बात करेंगे कि देखिए इन तमाम तकरीरों का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अपनी जिंदगी गुजारें।
क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम आपको और हमको दिया गया है, इसी में अपने बना लेना है या बिगाड़ लेना है। कोई हमारे पास पुनर्जन्म का इनकारनेशन जिसे आप कहते हैं, या इनकारनेशन या दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये पुनर्जन्म कोई चीज हमारे पास नहीं है। यही लाइफ है। जैसे किसी आदमी को रेगिस्तान में दौड़ा दिया जाए और एक बोतल पानी दे दिया जाए कि बाबू यही पानी तुमको पूरे रेगिस्तान में इस्तेमाल करना है, आप इसको कितनी हिफाजत और कितने एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही ये लाइफ है, ये आपको दी गई है, आप इसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें, लेकिन है बहुत लिमिटेड जिंदगी। लिहाजा प्रैक्टिकली इस्लाम पर बातें करना मकसद होता है। इंशाअल्लाह इस पर हम जिंदगी तो बात करेंगे आगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बात भी करेंगे कि मुश्किलात में अपने आप को कैसे उसको हम बर्दाश्त कर सकें, वो एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला सही बातें कहलाए। आमीन या रब्बल आलमीन।